हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here. Reform of introduced by the 74 constitutional amendment. There is the most important the BA class and +1 and +2 and NIS board also. There is a recommendation of observation of the several is the commissions of communities and appointment by the central government from time to time to improve their urban bodies, resulting in their instrument of the constitution. As 74th Amendment Act of 1992, the earlier state government were free to manage their local bodies as they wished. The amendment made a statutory provision for the establishment and empowerment of functioning of the urban local self-governing institution. The main provision of the act can be grouped under two categories. It is a compulsory and voluntary. There is some of the compulsory provision which are the binding on all the state are. There is the first point here. Constitution of the Nagar is a panchayat, a municipal commissioner and municipal is a corporations and small, big and very big urban area respectively. There is the most important here, the constitution of the Nagar panchayat, municipal councils and the municipal corporation and the small, big and very big urban areas respectively. There is a reservation of the seat in an urban local body is a scheduled caste and scheduled tribes. Roughly is the proportion of their population. And third is the reservation of the seat for the women up to 1/3 of the seat. And the seat election commissions and constituted to order to conduct of election in their Panchayati Raj body, see the 73 amendment, will be also conduct election to be urban local self-governing of bodies. And the state is a finance commissions constituted as a deal with the financial affair of the Panchayati Raj bodies and also look into the financial affair of the local, urban and self-government bodies. The tenure of the urban local self-governing the bodies are fixed at the 5 years and in case of earlier dissolutions and fresh election are the held without 6 months. There is the most important here. And some of the voluntary provision which are not be binding but are expected to be absorbed by the state are. There is a first here, give a votings a right to be member of the union and state legislatures is this is body. And secondly, a providing to reservation for the backward classes. And third is a giving to financial power in the relation to a tax duty, tolls and free etc. The making of the municipal bodies autonomous on the devolution of the power to this body to perform for some of all their function immigrated in their 12th schedule added to be a constitution through this act and their prepared plan for economic development. In accordance with the 74th Amendment, a municipal corporation and the municipalities is a municipal body or municipal communities are now regulated in the fairly uniform manner in all the state. However, you must be remember that a local self-government continue to be a subject in the state lease. Thus, the 73 and 74 Amendment is a provide to the framework for the state in respect of the local government. Thus, each state has its own election commission which conduct an election to all the local bodies after regular interval of 5 years. Each state has a finance commission to regulate finance of the local bodies and the cities are reserved in their corporation and municipalities for the scheduled caste and tribes and other third seats are reserved for the women in all local bodies, urban and rural. ये जो आर्टिकल आपके समक्ष आया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधार, देखिए 74वें जो दिया गया है 74 संविधान संशोधन, ये कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए के जो है 5th सेमेस्टर में है उन बच्चों के लिए भी जरूरी है ये, ठीक है, और 11वीं और 12वीं के लिए तो है ही जरूरी है, तो आपके समक्ष ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपको करना है, ठीक है। सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 11वीं क्लास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रखता है और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसलिए आपको ये समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 74 संशोधन में क्या क्या सुधार किए गए थे।
कहते हैं समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा शहरी निकाय में सुधार लाने हेतु नियुक्तियां आयोग एवं कमेटियों की सिफारिश और सुझावों की जो है परिणाम स्वरूप संविधान के 74वें संशोधन एक्ट 1992 लागू किया गया था। और पहले राज्य सरकार ने अपने स्थानीय निकाय को अपनी इच्छानुसार प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने रूल रेगुलेशन की रिगार्डिंग जो है इसको चला सकता है स्वतंत्रतापूर्वक। इस संशोधन ने शहरी स्वशासी संस्थाओं की स्थापना जो है उनके सशक्तिकरण और उनके कार्यप्रणाली के वैधानिक रूप से दिया। और इस एक्ट के मुख्य जो प्रावधानों को दो वर्गों में अनिवार्य और ऐच्छिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनिवार्य प्रावधान में से कुछ जो सभी राज्यों के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ इस प्रकार। देखिए ये पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 70वें जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन कौन जो है विशेष बातों को ध्यान रखा गया। और ये संविधान जो एक्ट पास हुआ था 1992 में पास हुआ था, तो ये सभी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और इससे एग्जामिनर भी काफ़ी आपका जो है प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी है। और इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा कि इस एक्ट के जो है प्रावधानों में दो वर्गों में विभक्त किया गया था, एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक के रूप में। चलिए देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं जो थी अनिवार्य बनाया गया था 74 आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आया था कि छोटे बड़े और बहुत बड़े शहर क्षेत्र में क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निकाय का गठन करना। देखिए 74 आर्टिकल्स का पहली बातें थी शहरी स्थानीय निकाय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात पर सीटों की आरक्षण होगी। ये दूसरी बात थी 74 आर्टिकल्स की। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, यह भी 74 आर्टिकल्स में दी गई थी। कहते हैं अगर 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य स्वशासी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु गठित राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के भी चुनाव करवाएगा। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये 73वें संशोधन में था, यानी 74वें संशोधन में नहीं है। ठीक है, 73 आर्टिकल्स में था। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पंचायती राज्य संस्थाओं के वित्तीय मामलों को देखने के लिए गठित राज्य वित्तीय आयोग स्थानीय शहरी स्वशासित निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखेगा। ये प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात शहरी स्थानीय स्वशासित निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था और जल्दी भंग हो जाने की स्थिति में नए चुनाव 6 महीने के भीतर करवाने का भी प्रावधान किया गया था। ये 74 आर्टिकल में संशोधित किया गया था, जो कि काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कुछ ऐच्छिक प्रावधान जो राज्यों पर जो बाध्यकारी नहीं है, परंतु जिनको राज्य द्वारा लागू करने की अपेक्षा की जा सकती है। तो इसमें पहली बात यही आता है कि इस निकायों में संघ अथवा राज्य विधायकों के सदस्यों को मत अधिकार प्रदान करना होता है। दूसरा यही होता है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के प्रदान करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात दी गई थी। करों और शुल्क और सीमा शुल्क और फीस इत्यादि के संबंध में वित्तीय शक्ति प्रदान करना भी इसी के अंतर्गत था ऐच्छिक के। नगरीय स्वशासन संस्थाओं को स्वायत्त बनाना और इस एक्ट द्वारा संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूचित में दर्ज कुछ अथवा सभी कार्यों को करने और आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाने के लिए शक्तियों का हस्ताक्षरण भी इसी के अंतर्गत किया गया, जो कि काफ़ी ऐच्छिक के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात देखा जाए तो 70वें संशोधन के अनुसार अब सभी राज्यों में नगर निगम और नगर स्वशासन की संस्थाओं के सामान्य रूप से एक ही प्रकार में नियंत्रण किया जाता है। परंतु आपको याद रखना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन अभी तक राज्य सूची का एक विषय है और इस प्रकार 73वां और 74वां संशोधन स्थानीय स्वशासन के संबंध में राज्यों को एक ढांचा प्रदान करता है। यानी जो ये संशोधन हुई 73 और 74 आर्टिकल्स, वो कई मायने में इंपॉर्टेंट था और राज्य को एक ढांचा, एक रूप देने के लिए अग्रसर हो गया। इस तरह 5 साल के नियमित अंतराल के बाद स्थानीय निकाय का चुनाव कराने से के लिए हर राज्य में एक चुनाव आयोग गठित होती है। स्थानीय निकाय के वित्तीय और नियमित करने के लिए एक वित्तीय आयोग होता है और नगर निगम और नगर पालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटें आरक्षण होती है। शहरी और ग्रामीण सभी स्थानीय निकायों में स्त्रियों के लिए 1/3 सीट का जो है आरक्षण करने का ये 74 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 74 आर्टिकल जब लागू किया गया तो ये सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट था, सभी सिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था किया गया, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया। आज देखो कि बड़े बड़े नगरों में जो है नगर पालिकाओं की जो है स्थापना किया गया और नगर पालिका और नगर निगम जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। अब यह कंफ्यूज हो गए कि नगर निगम और नगर पालिका अलग है। नहीं दोस्तों, ये दोनों
एक ही है, लेकिन कहीं नगर निगम के नाम से जाना जाता है और कहीं नगर पालिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका कार्य जो होता है, आपके जितने भी स्ट्रीट लाइट की हो गई, आपका सीवेज की प्रॉब्लम हो गई, डिस्पेंसरी खोलना, ठीक है, रोडों को बनाना है, तो सारे के सारे जितने भी मेंटेनेंस के कार्य होते हैं सब जो है नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं। बलवंत राय मेहता कम्युनिटीज एंड द अशोक मेहता community. That is the most important topic for the exam view. The Balwant Rai Mehta community in 97 is suggested by the democratic is a decentralization of the three-tier structure of Panchayati Raj. There is a three-tier structure Raj is a community. There is a Balwant Rai Mehta is in 1957, and this means that a Panchayati Raj should be a set up to the three level. There should be a furnished there with the sufficient power and the resource. This three tiers of Panchayati Raj are Jila Parishad at a district level, and Panchayat Samiti at an intermediate or block level, and village or Gram Panchayat at the village level. There is a Balwant Rai community is the recognized here. In this change, a Panchayat Samiti was to be a most important, and these three bodies were interlinking as the lower body was represented in the higher body through its chairperson. The Panchayati Raj of the Balwant Rai Mehta community pattern was first introduced by the Rajasthan in 1957. There is established here introduced by Rajasthan in 1957. There is an important point, note down. The later other states also follow that essentially both the people and their state were extremistic about the Panchayati Raj. However, the Panchayati Raj instruction began to decline very soon owing to the government and indifferent the political interference. The Ashok Mehta committee set up to the government to review of Panchayati Raj submitted is a report in 1978. This committee felt to the Panchayati Raj had inculcated is a political awareness among the rural masses. And however, it is not been too successfully is a carrying out economical development. Unlike the Balwant Rai Mehta community, the Ashok Mehta community suggests a two-tier structure of Panchayati Raj. There is a most important. Who is the suggested the two-tier structure of the Panchayati Raj? There is a Balwant Rai Mehta community and Ashok Mehta community suggested by the two-tier structure of Panchayati Raj. And this tiers were to be a Jila Parishad or district level. And second here is a Madhya Panchayat is an administrative unit between the village Panchayat and Panchayat Samiti in the two-tier structure. The main emphasis was laid for the Jila Parishad and not on the Panchayat Samiti as in the case of the earlier committee report. However, there is the recommendation of the Ashok Mehta committee could not be implemented due to the council to the Janta government in 1980. The state like Bihar, Uttar Pradesh and Tamil Nadu did not be hold election to the Panchayat for a long. At the same time, many new agencies were set up to the central government of like a district rural development agency to take up the development program in a collaborations with the state government with the panchayats having no role is in this is a programs. They themselves hardly had any fund to be take up to development project in the villages. बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश है। देखिए, ये बलवंत राय मेहता और कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने ये सिफारिश किया था कि पंचायती राज का स्थापना हो, और कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के तरीके सुलझाए थे। यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक जो है बनाने के लिए सिफारिश किया गया था, और इसका अर्थ था कि पंचायती राज 3 स्तरों पर स्थापित किया जाए और उन्हें पर्याप्त शक्तियां और संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तर इस प्रकार थे: जिला स्तर पर जिला परिषद थी, और ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक समितियों को प्रायोरिटी दी गई थी, और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तरीय कहा जाता है या 3 टायर्स है, जिसके बाद विषय में हम आगे चर्चा करेंगे वो भी विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो इसमें 3 स्तरीय जो होगा, जिला स्तर जिसमें जिला परिषद को लिया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर जो है मध्यवर्ती स्तर या ब्लॉक समिति ली जाएगी, और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत लिया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है।
इस योजना में पंचायत समिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और ये तीनों संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि निचली संस्थाओं को ऊपर की संस्था ने इसके अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यानी देखा जाए जो ऊपर वाला था वो कमजोर थी, उसके बाद मिडल वाला जो होता था वो थोड़ा सा मजबूत होती थी और नीचे वाला जो होता था काफ़ी मजबूत होता था। यानी देखा जाए तो बीच वाला जो होता था दोनों को लिंक का काम करता था, यानी दोनों को मिलाने के मध्य का काम करता था। कहते हैं अगर हम देखें तो बलवंत राय मेहता कमेटी के पंचायती राज के प्रारूपों को सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया था। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि इसको जो पहली बार जो इसको बनाया गया और इसको लागू किया गया वो किया गया 1959 में, यानी 1959 में इसको कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और आरंभ में लोग राज्य दोनों को पंचायती राज के प्रति काफ़ी उत्साहित भी थे, क्योंकि उनको लगा कि शायद इससे जो उनकी जीवन है काफ़ी सुधरेगी। परंतु शीघ्र ही सरकारी उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पंचायती राज संस्थाओं का पतन होने लग गया। तो कहते हैं देखिए दोस्तों इस साफ ये बात आता है कि कोई चीज़ को अगर अच्छे से नहीं किया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कि आप भी अगर पढ़ाई ढंग से ना करो तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तभी उसको जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो यही बात है कि इन्होंने रूल रेगुलेशन तो लागू कर दिया, लेकिन इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई भी जो है उचित कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से त्रिस्तरीय जो थी बिल्कुल पतन के कगार पे आ खड़ी हुई। सरकार द्वारा पंचायत राज की समीक्षा हेतु गठित अशोक मेहता कमेटी ने 1979 में यानी 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमेटी का मानना था कि पंचायती राज ने ग्रामीण लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा कर दी थी, परंतु यह आर्थिक विकास ला पाने में सफल नहीं हो रह पाई। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के विपरीत अशोक मेहता कमेटी ने द्वितीय पंचायती राज का सुझाव दिया। यानी देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय जो संस्थाओं का जो बनाया था, लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने इसको द्विस्तरीय बना दिया, यानी दो के ऊपर आ गया। वहाँ पर 3 थे, अब यहाँ पर 2 को ही जो है प्रायोरिटी दी गई। ये 2 थे जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा थे मंडल पंचायत, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद को लिया गया और मंडल पंचायत ये जो थे 2 जो बिल्स थे उस पर बनाया गया था। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच एक प्रशासनिक इकाई थी, यानी द्विस्तरीय प्रणाली के जो है मुख्य बल जिला परिषद पर था, न कि पहली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती समिति पर था। परंतु 1980 में जनता सरकार के गिर जाने के कारण अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। कहते हैं ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है कि सरकार जिसकी रहती है उसी की चलती है, लेकिन ये जो बनाई गई थी त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय वो काफ़ी जो है ग्राम के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन कहते हैं ना जब सरकार गिर गई तो इसको लागू भी नहीं किया गया, सिर्फ इसको कॉपी में ही और पेजों में ही सीमित रख दिया गया। कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में काफ़ी समय तक पंचायतों के जो चुनाव नहीं करवाए गए। उसी समय केंद्र सरकार ने विकास कार्यक्रम को अपने हाथों में लेने के लिए कई नई एजेंसियां जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिक्रमण गठित, और इन कार्यक्रमों में जो है पंचायत की कोई भूमिका नहीं थी। पंचायतों अपने पास विकास परियोजना के लिए भी कोई पैसा नहीं था। तो इसमें तो जर्नली सी बात है कि कई जगहों पर पंचायती राज थी भी नहीं और थी भी तो उनको जो है सही से विकास नहीं किया जा सका। अब जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो 73 के जो है बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा 73 में क्या है। तो our next important topic here are silent feature of 73 amendment. There is the most important silent feature of 73. There is amendment. The 73 amendment to the Constitution incarried in the 1992 made by statutory provision for the establishment empowerment of functioning of Panchayati Raj institution. There is a formation of 1992. There is a 73 articles here, and there is a functioning of the Panchayati Raj institution. As some provision of the amendment are binding on the state, while the other has been left to be decided by the respective state legislatures at their is a discretions. The silent feature of the amendment are flowing here. The first, there is a sum of compulsory requirement for the new law are here. The organization of the Gram Sabha. The organization of Gram Sabha, and next year the creation of the 3-tier Panchayati Raj structure at the Jila, block and village level. There is the most silent feature of the 73 amendment here. And next amendment is almost all the posts at all level to be filled by the direct election. And next here is a silent feature of 73 amendment here. A
minimum age for the contesting election to the Panchayati Raj institution by 21 years. The next year, the post of chairman at the Jilla and block level should be filled by indirect election. There should be a reservation of the seat of scheduled caste. This is the most important point. Note down. There is a scheduled caste and scheduled tribes in their panchayat in the provision of their population and the women panchayat such as the 1/3 of seat. There is a 1/3 of seat is a reservation for the women of panchayatis, and there is the other is a reservation seat for the scheduled caste and scheduled tribes. The State Election Commission to be set up to the each state to the conduct election to be Panchayati Raj institution. The State Election Commission, and the next year the tenure of the Panchayati Raj institution is a 5 year, and if the dissolved earlier, fresh election to be held within the 6 month. A State of Finance Commission is a set up to the each state every 5 year, and please refer to be 74 amendment discussed above. And some of the provisions which are not be binding on the state but only our guidelines are the given voting right to be member of the central and state legislatures is in these bodies, and providing to reservation for backward classes, and their Panchayati Raj institution should be given is a financial power in the relation to the taxes and the less fees etc. And the effort shall be made to make a Panchayati is a autonomous bodies. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है 73 संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। देखिए दोस्तों, 73 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 74 है। 74 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 73 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। कहते 1992 में जो अधिनियम 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और सशक्तिकरण और कार्य प्रणाली के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। इस संशोधन के कुछ प्रावधान राज्य के लिए जो है बाध्यकारी थे, जबकि अन्य के लिए संबंधित राज्य के विधायकों के विवेक पर छोड़ दिया गया। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। कहते हैं अगर देखा जाए इनकी विशेषताओं के ऊपर, तो कहते हैं नए कानून के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकता थी। पहली बात तो यही आता था कि ग्राम सभाओं का गठन किया गया। इसके रिगार्डिंग जिला, ब्लॉक और ग्राम सतरों पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों की रचना की गई। साथ में इसकी 73 की और विशेषता थी, वो थी सभी सत्रों पर लगभग सभी पदों के लिए सीधे चुनाव द्वारा भरना था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये हमेशा रहा है, तो ये इसकी विशेषता जरूर आपको समझना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो है अध्यक्ष चेयरमैन पद को जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरना, यानी जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्टली नहीं चुना जाएगा, इनडायरेक्टली चुना जाएगा, यानी उसको जो है ब्लॉक स्तर पर जितने बंदे जीतेंगे उनके द्वारा जो है चुनने का प्रावधान किया गया। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया गया, यानी जितनी जनसंख्या होगी उतने जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट जो रहेगा रिजर्वेशन करके रखा जाएगा। और पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो थी आरक्षित की गई, यानी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका दिया गया। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, यानी अगर पंचायती राज में चुनाव होगा तो उसका जो है हाई कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव करवाई जाने की प्रावधान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा। यदि अवधि पूरा होने से पहले ही भंग हो तो चुनाव जो है 6 महीने के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य बना दिया गया। कहते हैं प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करना रहेगा। तो ये सारी बातों को जो है यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई। कहते हैं कुछ ऐसे प्रावधान जो बाधाकारी नहीं थे परंतु केवल मार्गदर्शक के रूप में जो है 73 आर्टिकल्स में सम्मिलित किया गया विशेषताओं के रूप में। तो वो थे केंद्रीय और राज्य विधायकों को इन संस्थाओं को मत देने का अधिकार देना, यानी केंद्रीय और राज्य विधायकों को संस्थाओं में मत देने का अधिकार पूर्ण दिया गया। पिछड़े वर्गों की आरक्षण प्रदान की गई जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि तभी जो है पिछड़े वर्ग आगे भी आ सकेंगे। और पंचायती राज संस्थाओं की टैक्स और शुल्क लगाने के संबंध में वित्तीय शक्तियाँ भी दी जानी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को वे स्वयं ही निकाय बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये सभी बातों को जो है यहाँ पर मार्गदर्शन के रूप में सम्मिलित किया।